وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف، روٹی کی قیمت میں مزید 3 روپے کمی کر دی۔ مریم نواز نے کہا کہ صوبے میں روٹی کی قیمت آج مزید کم کر دی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے غلط فیصلوں نے روٹی کو غریب کی پہنچ سے دور کر دیا تھا۔ مہنگائی کے بھنور میں پھنسے عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں مزید کمی کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی متوقع، ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 50 پیسے کمی کا امکان۔ قیمت میں کمی حتمی اعلان حکومت 31 مئی کو کرے گی۔ عوام کی فلاح و بہبود کا ہر شعبہ اولین ترجیح ہے، تمام شہروں کے لیے پائیدار اور مؤثر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے آلٹرنیٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی ملاقات۔ پنجاب میں ڈیولپمنٹ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ ادھر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ایئر ایمبولینس سروس جلد شروع کرنے کا حکم، جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ پنجاب حکومت کا یونین کونسلز کی تشکیل نو کا فیصلہ، یونین کونسلز 15,000 کی بجائے 20,000 آبادی پر مشتمل ہوں گی۔ حکومت نے نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا مسودہ تیار کر لیا، نئے ایکٹ کا مسودہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے سنی اتحاد کونسل کی ریکوزیشن جمع، کہا کہ لا اینڈ آرڈر اور رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن پر حملے کے بعد کے حالات پر اجلاس بلایا جائے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ۔ ایسا کوئی بل، ایسا کوئی قانون قابل قبول نہیں ہے جو ہماری سوچ کے اوپر پہرا لگا دے، جو بولنے کی جو ہماری صلاحیت ہے اس کو ختم کر دے، اور جس کے نتیجے میں صرف وہ بولا جائے جو حکومت چاہتی ہو، جو طاقتور لوگ چاہتے ہوں، اور وہ کہا جائے، وہ پیش کیا جائے جو ان کی مرضی ہو۔ یہ نہیں چلے گا۔ اب وہ زمانہ گزر گیا۔ اب تو امریکہ سے بھی اپنے عوام کنٹرول نہیں ہو رہے، تو آپ تو امریکہ کے شاگرد ہیں، امریکہ ہیں بھی نہیں، آپ تو ان کے ایما پر آئے ہیں، مسلط ہوئے ہیں، ان کے کہنے پر لائے گئے ہیں۔ آپ کے پاس تو یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کام ٹھیک طریقے سے کر سکیں۔ حد کی عزت بل میڈیا پر پابندیوں کی سازش ہے جسے ناکام بنائیں گے، ایسا قانون قابل قبول نہیں جو سوچ پر پہرا لگا دے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لفظی گولہ باری، کہا حکومت یہ طے نہیں کر سکتی کہ ان کی مرضی سے لکھا اور بولا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان سے مختلف صحافتی تنظیموں کے نمائندوں پر مشتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وفد کی بھی ملاقات ہوئی۔ کورٹ رپورٹنگ پر پابندی، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں پیمرا وفاقی حکومت اور سیکرٹری انفارمیشن کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں نقطہ اٹھایا گیا کہ پیمرا کا نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A سے متصادم ہے، اسی بنیاد پر کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا جو کہ آئین کی منشا کے خلاف ہو۔ درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ سورج کا مزاج آج بھی برہم رہا، شدید گرمی اور تپش کی وجہ سے شہریوں کے اعصاب جواب دینے لگے۔ شہر میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ گرمی کی شدید لہر سے چرند پرند کا بھی برا حال، آئندہ ہفتے ہیٹ ویو کا خدشہ۔ سورج نے آگ برسائی تو شہریوں نے بھی نہر میں خوب ڈبکیاں لگائیں۔ بچوں اور بڑوں کی نہر میں نہا کر گرمی کو دور بھگانے کی کوشش۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے پانی میں نہا رہے ہیں۔ شدید گرمی میں جنگلات میں آگ لگنے کے خدشات، پی ڈی ایم میں محکمہ جنگلات کا معاون بن گیا۔ ترجمان کے مطابق آگ بجھانے والی 2 گاڑیاں اور آلات فراہم کر دیے، جنریٹرز، لائٹ سٹینڈز اور فائر فائٹرز کے لیے ٹرک بھی سامان میں شامل۔ ایک طرف بلا کی گرمی، دوسری جانب انتہا کی لوڈ شیڈنگ۔ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ لیسکو کو 250 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا۔ بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے شہری اور تاجر برادری شدید پریشان۔ لیسکو کا بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن، 24 گھنٹے کے دوران ریجن بھر میں 39 بجلی چور گرفتار۔
465 मुलजिम बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 160 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। 1,03,682 डिफॉल्टर से 4 अरब 69 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी की गई। बिजली की कीमत है उसका टैरिफ बढ़ाएं, और वो बता रहे हैं कि आइंदा चूंकि डॉलर 329 रुपए का हो जाएगा, लिहाजा आप बिजली की कीमत इतनी बढ़ाएं कि जो बिल आखिर 82 से 85 रुपए पर यूनिट पड़ेगी लोगों को। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये आवाम के ऊपर बोझ डालने के लिए बराह रास्त IMF नेपरा से बात कर रहा है, इसमें हुकूमत कहाँ है? गुलामी भी कोई लिमिट होती है उसकी। बिजली के मुआहदों से आवाम महंगी बिजली के बिल भर रहे हैं। कौम की जेबों पर डाका डालकर अरबों रुपए IPPOs को दिए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, महंगी बिजली हो गई तो सनतें कैसे चलेंगी? हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। सोलर की कीमत में कमी के बाद एक बार फिर इजाफा। सोलर प्लेट फी वॉट 37 रुपए से बढ़कर 43 रुपए फी वॉट हो गई। दुकानदारों के मुताबिक बिलों में इजाफे और गैर एलानिया लोड शेडिंग से निजात हासिल करने के लिए लोग सोलर का रुख कर रहे हैं। खातून के पासपोर्ट पर शोहर के नाम के इंदराज का मसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मसले के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मोहसिन नकवी की कवायद और जवाबित के तहत मसले का फौरी हल निकालने की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने लाहौर एयरपोर्ट पर 25 अजाफी इमिग्रेशन ऑफिसर तैनात भी कर दिए। कहा, हज ऑपरेशन के दौरान अवाम को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। PTA रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल VVIP रूम में मुंतकिल। डॉक्टर यास्मीन राशिद को ऑक्सीजन दी जा रही है। डॉक्टर्स ने साबिक वजीर सेहत को अदालत पेश न करने की तजवीज़ दी। यास्मीन राशिद के जिस्म में पानी की शदीद कमी है। बाहर से टिप टॉप, अंदर से हालत खराब। हुकूमत ने अस्पतालों की रिवैम्पिंग पर अरबों रुपए लगा दिए। अवाम को सेहत की बुनियादी सहूलतें फिर भी न मिल सकी। जनरल अस्पताल में CT स्कैन के लिए दरकार इंजेक्शन का स्टॉक खत्म हो गया। मरीजों को 1 माह से शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब हुकूमत सेहत की सहूलतों की फराहमी के लिए पुरअज़्म। हेल्थ इंश्योरेंस के वर्किंग ग्रुप की सब कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हेल्थ इंश्योरेंस में इस्लाहात का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के फाइनेंशियल मॉडल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मासूर अफराद की फलाह के लिए इनकलाबी इक़दामात का अज़्म। काउंसिल ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के इजलास। वज़ीर सोशल वेलफेयर पंजाब सुहेल शौकत भट्ट ने इजलास की सदारत की। मासूर अफराद के लिए नए इक़दामात और पॉलिसीज़ की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट ने कहा कि मासूर अफराद के लिए जल्द पैकेज लाएंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से चीफ ब्रिटिश काउंसिल आइस्को और गूगल ओहदेदारान की मुलाकातें। साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीमी मनसूबों में तावन पर बातचीत की गई। गूगल के साथ मजबूत शराकतदारी और जदीद IT कोर्सेज मुफ्त करवाने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से बहावलपुर चैम्बर के वफ़द की मुलाकात। इंडस्ट्री और सनअतकारों के मसाइल पर बातचीत। सूबाई वज़ीर के मसाइल के हल की यकीन दहानी। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि सनअतकार इंडस्ट्री लगाए हर मुमकिन सहूलत देंगे। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तुकर्रुर तबादले। सिद्रा खान SP टेली कम्युनिकेशन पंजाब तैनात कर दी गई। गयूर अहमद खान का एडिशनल SP ऑपरेशन सदर डिवीजन लाहौर तबादला कर दिया गया। सैयद तैमूर हुसैन DSP मोबाइल सिविल लाइन लाहौर तैनात किए गए। मोहम्मद एहसान अशरफ को DSP डॉल्फिन स्क्वाड सिविल लाइन लगा दिया गया। सैयद आमिर अब्बास शेराजी सेंट्रल पुलिस ऑफिस पंजाब तैनात कर दिए गए। महकमा जेल का कैदियों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब की जेलों में टक शॉप के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के साथ माहिदा। टक शॉप्स पर चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, दूध, दही, जूस और बेकरी आइटम्स दस्तयाब होंगी। टक शॉप सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
ट्रैफिक पुलिस ने लेन लाइन, साइड मिरर्स, इंडिकेटर्स और बैक लाइट्स मुहिम का आगाज कर दिया। सीटीओ लाहौर कहती हैं कि हादसात की दूसरी बड़ी वजह गलत लेन का इस्तेमाल है। इंडिकेटर्स और सिग्नल दिए बगैर लेन तब्दील करना भी हादसे को जन्म देता है। सॉफ्टवेयर के अंदर जो है अपग्रेडेशन चल रही है, जिसकी वजह से हमारा 27 तक हमारा जो सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं होगा। लाइसेंसेस और लर्नर्स और इंटरनेशनल रिन्यूअल ये सब जो हैं हमारे 27 तक जो हैं ये स्टॉप कर दिए गए हैं, और इस वजह से हम लोग अगले 2-3 दिन हैं ये हम लाइसेंस के हवाले से चालान जो हैं वो एज सच नहीं करेंगे। सीटीओ लाहौर हमारा अथर का शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ। 27 मई से ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर चालान नहीं होगा। सीटीओ लाहौर ने कहा सिस्टम अपग्रेडेशन तक शहरियों को रिलीफ दिया जाएगा। 27 मई दोपहर 3 बजे तक लाइसेंस सिस्टम मौतूद रहेगा। जमात इस्लामी लाहौर के वफ़द की ईरानी कौंसलेट के दफ्तर आमद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा की शहादत पर रंज व गम का इजहार किया। दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की वफ़द की क़यादत अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने की। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब कल्चरल विंग ताहिर अंजुम की ईरान के कायम मकाम कौंसल जनरल अली अस्कर मगारी से मुलाकात हुई है। सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़क़ा की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। ताहिर अंजुम ने कहा कि ईरानी सदर की शहादत पर तमाम फनकार गमज़दा हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में नैनो टेक्नोलॉजी और बायो फार्मास्यूटिकल सेंटर का इफ्तिताह। सेनेटर खालिद शाहीन भट्ट ने सेंटर की निकाब कुशाई की। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमिश्नर डॉक्टर शाहिद मुनीर और वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद की खुसूसी शिरकत। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि रिसर्च वो है जिसका असर मुआशरे और सनत पर। ICMA में 74वां चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स डे की मुनासबत से तकरीब। CFO सुपीरियर यूनिवर्सिटी मोहम्मद यासीन और चेयरमैन लाहौर ब्रांच काउंसिल गुलाम अब्बास की शिरकत की गई। CFO सुपीरियर यूनिवर्सिटी मोहम्मद यासीन का कहना था कि ICMA से पास होने वाले तलबा मुल्क के नामवर इदारों में काम कर रहे हैं। CBD पंजाब बिजनेस बे के 3 प्लॉट्स 6 अरब 55 करोड़ रुपए में नीलाम। मुल्क भर से सरमायाकारों की नीलामी में शिरकत। नीलाम होने वाले प्लॉट्स में सबसे बड़ा प्लॉट 8 केनाल और सबसे छोटा 6 केनाल का था। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन कहते हैं कि तीसरी कमर्शियल नीलामी पंजाब की इक्तिसादी तरक्की के हदफ की जानिब एक और कदम है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बल्दिया उस्मा इन एक्शन। समनाबाद जोन में प्लानिंग विंग का ऑपरेशन किया गया। समनाबाद चौक में ज़ेर तामीर इमारत और दुकानें मिसमार कर दी गईं। DC लाहौर आफा हैदर के मुताबिक बैंक कॉलोनी में 4 रिहायशी घर सील किए गए। माली खुदमुख्तारी के हुसूल के लिए PHA का अहम मंसूबा। अंदरूनी खपत के लिए सीमेंट और बजरी से गमले बनाने का आगाज। DG मोहम्मद ताहिर वट्टू का कहना है कि PHA कमर्शियल नर्सरी और मुख्तलिफ कारोबारी मंसूबा जात से भी आमदन हासिल कर रहा है। स्मोक के खात्मे के लिए स्मोक फ्री पंजाब मंसूबा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।